Hello everyone, I am Ashu Kundi, CMA Inter qualified, and this is my video regarding finance updates, including capital market movements, SEBI updates, RBI and banking sector developments, economic indicators, corporate updates, fintech and digital payment developments, GST and income tax updates. Okay, and they are from July 27 to August 1, 2026. Okay, so this is crisp introduction of my videos, its frequency, its notes, necessity, applicability, and all. And I want to mention one thing here that I have also included one more section in my videos, that is of MCQs. I will be adding two MCQs after every type of update. Means, let's say if I have completed capital market movement and SEBI updates, then I will be providing you two MCQs. Okay, to boost your general knowledge. And similarly, for each and every update, I will be providing you two MCQs. In total, they will be 12. Total MCQs, they will be 12 in number. Okay. So ये मैंने एक नई चीज ऐड करी थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. अब हम now let's start with our first topic, that is capital market updates. So first of all, let's begin with capital market movements. Okay. So Nifty IT has gained by 6.8%, gained by 6.8%. And key drivers are tech rebound, Infosys and TCS gains, global capital rotation into Indian IT. Okay, IT sector is growing at a rapid pace over here. Then BSc Information Technology, that has also gained by 6.5%, strong quarterly guidance, foreign inflows into IT. Then Nifty Media has also gained by 6%, and it is recovery in entertainment worth cutting stocks. Okay. Next is Nifty Auto. Nifty Auto has gained by 5.6%. Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki gains, crude oil retreat, boosted auto margins. And BSc Auto has also gained by 5.8%, sector rally on strong Q1 results and demand optimism. So this is all about the movements of Nifty and BSc. Okay. Then let's come to gold prices. Gold prices have come down to 1,41,599. Okay, and it has reduced by 1,633 and पर टन बेसिस पे होता है ये. एंड इसमें जो है बेसिकली डाउन जो है परसेंटेज में 1.14% से गया है. ओके, और जैसे मैं पहले भी आपको बताया कि ये पर तोला बेसिस पे होता है. ओके, मतलब 10 ग्राम्स. देन exchange rate is 95.39 against dollar, and it has reduced by 0.31% and in number 0.3. Okay, रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स इंडियन रूपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका. इंडियन रूपी में क्या हुआ है, करेंसी एप्रिसिएशन, मीन्स इंडियन रूपी हैज गेन्ड वैल्यू. ओके, इंडियन रूपी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से उसमें वैल्यू में क्या आया है, गेन आया है. ठीक है, इंक्रीज आया है. ओके, नाउ लेट्स क्विकली रिकैप स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस. तो इसमें निफ्टी 50 में जैसे हमने देखा कि ये इसमें जो है इंक्रीज देखा गया है. ये ओवरऑल है. ठीक है, ये निफ्टी 50 ओवरऑल है. इधर मैंने आपको जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको उसके बाइफर्केशंस बताए थे कि मीडिया में कितना है, ऑटो में कितना है, आईटी में कितना है ना. यहाँ पर जो है यहाँ पे ओवरऑल है. ठीक है, ओवरऑल है. ओके, तो 2.59 ओवरऑल गेन हुआ है निफ्टी 50 में, एंड इट्स वैल्यू रीच्ड टू 24,383 and it has increased by 616 points. Then Sensex has also gained value, and it has gained value by 2.68%, increased by 2,034 points, and the final value 8,094.65 points. Okay. देन टॉप गेनिंग इंडाइसेस कौन से हैं. सबसे टॉप पे जो गेनिंग इंडाइसेस है वो निफ्टी आईटी है, फिर बीएससी आईटी, देन निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो एंड बीएससी ऑटो. तो मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला है दिस वीक. ओके, टॉप गेनर्स आप देख सकते हो, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये सब टॉप गेनर्स हैं. टॉप लूजर्स बीएल, ओएनजीसी, अडानी फूड्स. देन मार्केट ड्राइवर्स आर जो क्रूड ऑयल का रिट्रीट हो रहा है, या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग रिज्यूम्ड, एंड रुपी स्ट्रेंथ. इन ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ओके, profit booking, global uncertainty, sector divergence. These were the risks which may be involved in future. Okay, and profit booking and global uncertainty and sector divergence. Then next is SEBI updates. Okay, SEBI updates में फर्स्ट अपडेट जुलाई 27 2026 का है. दैट इज एक अपडेट आया, एक सर्कुलर SEBI ने रिलीज किया है ऑन ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स. ESG रेटिंग प्रोवाइडर अभी मैं बताऊंगी क्या होता है. ठीक है, कौन होते हैं. तो एक सर्कुलर आया है ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स को लेकर. तो क्या कहा गया है इस सर्कुलर में कि जितने भी हमारे ESG के जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनको अब क्या करना होगा,
ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स जितने भी हैं उनको अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन उनके लिए क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। और साथ ही साथ उनको कुछ डिस्क्लोजर के रिलेटेड नॉर्म्स भी जो है उसमें जो है बताए गए हैं कि उनको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। एंड ये देवर इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव होंगे वो अक्टूबर 1 2026 से इफेक्टिव होंगे। तो ये कुछ लेके आएंगे न्यूज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट दिस ईएसजी रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, ईएसजी रेटिंग एजेंसीज they are like ESG rating, they access the companies on environmental, social and governance factors कि कोई भी कंपनी है वो इन 3 फैक्टर्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है उसके बेसिस पे जो है ESG रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। दे हेल्प इन्वेस्टर्स जज सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। देन इट्स कॉमन नेम आर MSCI। जो इसमें मेजर एजेंसीज है वो कौन कौन सी है? MSCI, सस्टेनालिटिक्स, ISS, ESG, मूडी के बारे में तो हमने सुना भी है ना, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है। S&P ग्लोबल, ये सारी जो है ऐसी एजेंसीज हैं जो ESG रेटिंग प्रोवाइड करती हैं और इन सबके रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके थोड़ी कंसिडरेशन की वजह से ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस इन सबके डेटा में आ सकता है। ठीक है, अब एंड ESG रेटिंग आर यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे जब इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में तो वो डिसीजंस जब ले रहा होता है दैट टाइम ESG रेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो उसको भी कंसीडर करता है। पोर्टफोलियो स्क्रीनिंग एंड कॉर्पोरेट एनालिसिस, इन सब सेक्टर्स में इसकी यूज किया जाता है ESG रेटिंग का। एंड इसमें इंडिया में क्या रेलेवेंस है कि सेबी हैज आल्सो एक्टिव इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ESG प्रोवाइडर्स, जैसा हमने अभी भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोवाइड किया है डेटा, टॉप 10 ESG कंपनीज 2026 में ESG कंपनीज टॉप 10 कौन सी है जिसको रैंकिंग के बेसिस पे, तो लीडिंग इंडियन कॉर्पोरेशन है सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट रैंक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर विच इज लीडिंग इन क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड देन HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज एमिशंस को लेकर, एमिशंस इन्होंने काफी हद तक जो हार्मफुल गैसेस के होते हैं उन्हें रिड्यूस किया है, एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। ऐसे ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी है ना, एंड टाटा मोटर्स EV लेड एमिशन रिडक्शन and Dabur India increased biomass energy use, Lupin cleaner, health sustainability, Hindustan Zinc renewable power and water recycling, ITC expanded renewable energy and circularity, LTI Mintree enhanced campus energy efficiency, Tata Steel circularity and water efficiency। तो ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको जो है रैंकिंग दी गई। ठीक है, okay. Next is July 28, that is related to market surveillance directive, tightened monitoring of algorithmic trading patterns, brokers asked to submit quarterly audit reports। सेबी ने मॉनिटर करना जो है, मॉनिटरिंग के जो रूल्स होते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर, उनके पैटर्न्स पर, उसको और ज्यादा टाइटन किया है। दैट हैज आल्सो रेज्ड, उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है, टाइटन किया गया है उन रूल्स को। और अब से क्या होगा, अब से ब्रोकर्स जो होंगे, वेट, अब से जो ब्रोकर्स होंगे दे वर आस्क्ड टू सबमिट क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट्स। ब्रोकर्स को अब क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है ना, तो उसके लिए ये मूव लेके आया गया। ओके, next is July 29. July 29 is related to mutual fund liquidity guidelines. It has allowed intraday borrowing for mutual funds to manage redemption pressure, enhances liquidity. ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था। ठीक है ना, तो अब इसकी और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि अब जो है क्या कर सकते हैं, अब हम इंट्राडे बोरोइंग कर सकते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया था, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम केवल दिन में एक ही बार ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब से अलाउ हो गया है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आप दिन में मेनी टाइम्स यू कैन ट्रेड, ओके, एज विश। तो जिससे क्या होगा कि लिक्विडिटी इसमें और ज्यादा एनहांस होगी और ये म्यूचुअल फंड की मार्केट और ज्यादा ग्रो होगी इसकी वजह से। देन नेक्स्ट आता है जुलाई 30 का अपडेट, दैट इज IPO ओवरसाइट अपडेट। इट हैज क्लियर 3 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस IPO वर्थ 120 करोड़ एंड डायरेक्टेड मर्चेंट बैंकर्स टू इंश्योर स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर होल्डिंग्स। कि प्रमोटर्स कितनी होल्डिंग कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितनी आपके प्रमोटर की होल्डिंग है, वो भी आपसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मर्चेंट बैंकर्स के लिए कहा गया है। ओके, देन नेक्स्ट है August 1, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन। एक इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए क्या किया गया है, कैंपेन लगाया गया है विच इज लॉन्च नेशन वाइड अवेयरनेस ड्राइव ऑन रिस्क इन स्मॉल कैप फंड्स एंड अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स। जितने भी है, तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए एक अवेयरनेस ड्राइव लेके आया गया है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो एक अवेयरनेस ड्राइव आया है, इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन, जो August 1 2026 में लाया गया है। नो द रिस्क बिफोर यू इन्वेस्ट। तो बेसिकली ये बोलता है कि आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, सोच समझ के करो, रिस्क को समझते हुए करो, उसका पूरा फंडामेंटल 2 तरीके के एनालिसिस करो। उसके एनालिसिस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये मिनट,
फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे उसका, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप कहीं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ना, उसमें ध्यान से आपको उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होते हैं जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, ये बेसिकली जो ये डिवीजन है ना फंड्स का, ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसमें लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं। लिक्विडिटी भी इसमें क्या होती है, स्लो लिक्विडिटी। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स। देन बी अवेयर ऑफ अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स, ये सेकंड है कि आप जितने भी अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं उसका ध्यान रखें, आप प्रॉपर्ली वेरीफाई करें कि आपका जो एडवाइजर है वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है ना। तो वरना वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेंगे और आपको आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रॉडस्टर्स एंड स्कैम्स, नो सेबी रेगुलेशंस, क्योंकि इनके ऊपर है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको, क्योंकि अभी अनरजिस्टर्ड है तो सेबी की रेगुलेशन भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड फॉल्स प्रोमिसेस, तो इन सब चीजों से आप थोड़ा बचें, इन सब चीजों से आप फेक टिप्स, स्कैम अलर्ट्स वगैरह से आप बचेंगे। तो इसमें दो यहाँ पर नीचे आपको एक बात बताइए कि इन्वेस्ट सेफली, चूज अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड डू योर रिसर्च, अपनी खुद की भी रिसर्च आप करें। डोंट बी टू डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स, ओके। डू योर ओन रिसर्च, रिस्क को समझो और लिक्विडिटी को समझो, तब जाके इन्वेस्ट करो। तो ऐसा इसमें बताया गया है, ओके। नाउ लेट्स कम टू एमसीक्यूज, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो पहला आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल मार्केट के अंदर नहीं आता है, नहीं आता। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में आते हैं, डिबेंचर्स कैपिटल मार्केट में आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी कैपिटल मार्केट में ही आते हैं। तो क्या बच गया, रह क्या गया, रह गया ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ट्रेजरी बिल क्या है, मनी मार्केट का पार्ट है। क्योंकि हमारी जो मार्केट होती है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो कैपिटल मार्केट होती है और एक मनी मार्केट होती है। मार्केट जो होती है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज कैपिटल एंड मनी। कैपिटल होती है बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय के लिए होती है। मनी मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कमर्शियल बिल्स जो होते हैं या फिर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो बेसिकली मनी मार्केट का पार्ट होते हैं, इसीलिए ये कैपिटल मार्केट में नहीं आएंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड कैपिटल मार्केट्स डील विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी एंड bonds. Then next is recently SEBI mandated that all large corporates, जितनी भी large corporates हैं, must raise a minimum of 25% of their incremental borrowings through issuance of debt securities, ठीक है। तो जितनी भी large corporates हैं उनको अपना 25% अपना borrowings का debt के थ्रू जो है रेज करना है। मतलब जैसे क्या होता है कि जब कंपनी अपना पैसा रेज करती है, जब कंपनी को मनी की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है, दो तरीके से मनी रेज करती है। मतलब अगर कंपनी को पैसा रेज करना है तो उसके पास कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे जिससे वो पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। या तो वो इक्विटी में जाएगी या वो डेट में जाएगी, ठीक है। इन दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं, नुकसान है, ठीक है ना, और फायदे भी हैं। तो आपको डेट है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेट की बात हो रही है कि डेट जो सिक्योरिटीज है ना उसमें कम से कम आपको 25% ऑफ योर इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स का 25% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है इन डेट सिक्योरिटीज। तो ये इसमें जो है कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, ये हमारा जो ये हमारी बॉन्ड मार्केट है ना उसको और ज्यादा बेसिकली डीपन करना चाहते हैं, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या फायदा है डेट में, डेट में ऐसा क्या फायदा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, डेट के ना मेजर तीन बेनिफिट होते हैं, अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम बोलते हैं ना डेट, तो डेट के तीन बेनिफिट्स होते हैं मेजर, है ना। पहला बेनिफिट डेट का होता है कि ये नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इसमें आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे आपके डिबेंचर मतलब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब आपका कंट्रोल आपका डाइल्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। क्योंकि अगर आप इक्विटी में इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करोगे तो उससे क्या होगा कि नए नए शेयर होल्डर आएंगे और आपका जो मतलब बीओडी का जो शेयर है कंपनी का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब शेयर होल्डर का नंबर बढ़ गया है ना। लेकिन डेट में ऐसा नहीं है, डेट में तो बस जैसे ही हमने अपना सारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी तो हमारा वहां से काम खत्म हो गया। वो अब वो व्यक्ति से कोई ऐसा खास हमारा कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा कुछ उसका कंट्रोल हमारी कंपनी के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे उसकी पेमेंट हुई, द मैटर इज क्लोज्ड। देन सेकंड थिंग इज दैट इट इज टैक्स डिडक्टिबल, ये टैक्स डिडक्टिबल है। मतलब जो डेट पे जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं ना, जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो आपको वो उसको आपको माइनस करने दिया जाता है अपनी इनकम में से, जिससे क्या होता है, आपकी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं टैक्स, वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं हमारी इनकम को। एक्सपेंस क्या है इसमें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होता है वो हमारी क्या करता है, हमारी इनकम को रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारा टैक्स की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स इसलिए डिडक्टिबल माना जाता है।
और तीसरा है कि इसमें हमें फिक्स्ड पेमेंट करनी होती है, तो हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसमें हमें फिक्स पेमेंट करनी होती है, तो आप प्लान प्रॉपर्ली पहले से ही अपना बना के रख सकते हो, है ना, या अपने रिजर्व्स बना के रख सकते हो पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले से आपको पता है कि इसमें लाइबिलिटी क्या है, और बस इक्विटी में इसका अपोजिट हो जाएगा इन सबका, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें बोला डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इसका करेक्ट आंसर है। सेबी मूव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बाय इंश्योरिंग लार्ज कॉर्पोरेट debt securities instead of relying solely on bank loans. Okay, now let's come to RBI and banking sector developments. First update here is RBI dollar inflow schemes fetched $32 billion. It demonstrates RBI's successful forex management and strengthened India's balance of payment and rupee stability, critical for understanding external dynamics and monetary policy. बेसिकली सिंपल बात ये है कि यहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जैसे हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो डॉलर के इन्फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिससे कि फॉरेनर्स हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करें, तो उसकी वजह से हमारे डॉलर इन्फ्लोज बढ़ते जा रहे हैं और फॉरेन रिजर्व इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो इससे फायदा ये है कि जब हम अपनी फॉरेन कोई भी लाइबिलिटी हमें मीट करनी होगी तो हम इजिली कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव इनफ फॉरेन रिजर्व टू मीट दैट लाइबिलिटी। ओके, तो अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम आया है, तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, because it is many a times repeated. Okay, so balance of payment is basically it is like a record. Balance of payment एक रिकॉर्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टी फॉर्मेट में होता है। इसमें ये बेसिकली इसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती हैं बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी आपने अपनी कंट्री और बाकी सारी कंट्री के साथ जितनी भी आपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करी हैं, उन सारी ट्रांजेक्शंस का एक इसमें एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है। एंड इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब फॉर एवरी क्रेडिट, फॉर एवरी डेबिट क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें इसमें होंगी, डबल साइडेड ट्रांजेक्शन इसमें होंगी। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है कि बेसिकली इसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और फाइनेंशियल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है जैसे गुड्स, मतलब जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जनरली होते हैं, जो हमारे एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे, जो गुड्स सर्विसेज प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम, ठीक है। तो इसमें जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, रेमिटेंसेस, ओके, ये सब करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट डालेंगे, तो कैपिटल ट्रांसफर्स, नॉन प्रोड्यूस एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे मतलब डेट रिलीफ, सेल ऑफ पेटेंट राइट्स, लाइक दिस। देन फाइनेंशियल अकाउंट में एफडीआई, पोर्टफोलियो फ्लोज, लोन्स, रिजर्व एसेट्स, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया। देन क्रेडिट वर्सेस डेबिट, क्रेडिट में क्या क्या आता है और डेबिट में क्या क्या आता है, ऐसे स्टेटमेंट बनती है, तो जो क्रेडिट साइड होगी उसमें क्या क्या आएगा और डेबिट साइड जो होगी उसमें क्या क्या आएगा। तो जो क्रेडिट होता है उसमें आएगा एक्सपोर्ट्स, मतलब जैसे ये अकाउंट, तो ये जो क्रेडिट साइड होगी ना इसमें आएगा एक्सपोर्ट्स, और क्या आएगा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड या ट्रांसफर्स रिसीव्ड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। तो जितने भी इनफ्लोज वगैरह होते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वो आते हैं क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आते हैं इनफ्लोज, और जो डेबिट साइड होती है उसमें क्या आते हैं, आउटफ्लोज, दैट इज मतलब रिलेटेड टू इंपोर्ट्स या इनकम पेड टू फॉरेनर्स, ट्रांसफर सेंट अब्रोड, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रोड। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन नेक्स्ट इज बैंक क्रेडिट ग्रोथ। बैंक क्रेडिट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, 2 साल से ज्यादा ग्रोथ इस ईयर में देखी गई है। तो इट सिग्नल्स द रोबस्ट लेंडिंग मोमेंटम डिस्पाइट स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, दैट इज 12.21%। डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है, डिपॉजिट में भी ग्रो हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ है, बट लेकिन स्लो ग्रोथ है एज कम्पेयर टू क्रेडिट। तो मतलब बैंक जो है लोन ज्यादा दे रहे हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि बैंक जो है वो लोन जो है बैंक ज्यादा दे रहे हैं, जितना उनको डिपॉजिट मिल रहा है उससे ज्यादा लोन दे रहे हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका नुकसान भी है और फायदा भी है ना, क्योंकि देखो अगर बैंक लोन ज्यादा देगा तो उससे क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचो डिपॉजिट्स तो इतने आ नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन लोन हमें बहुत ज्यादा बैंक को देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे बैंक की लिक्विडिटी पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा, फंड्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे फायदा ये है कि बैंक के एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, लाइबिलिटीज जो होती है बैंक की वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि अब डिपॉजिट्स कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से अब जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है बैंक को वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और लोन में उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उससे इनकम बढ़ेगी, तो इनकम पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कैश फ्लोज पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है। फिर नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई इकोनॉमी रेजिलियंट डिस्पाइट द ईरान वॉर एंड मॉनसून रिस्क। ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ईरान वॉर एंड मॉनसून रिस्क। तो आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट रीअफर्म्स ग्रोथ आउटलुक बट फ्लैग्स external oil and domestic monsoon risk, तो ये risk देखे गए। Then next है UPI transaction hit record of 29.9 lakh crore in May. It record digital payment volumes काफी बढ़ गई हैं underscore fintech bank collaboration and India's digital finance leadership। ठीक है, वैसे तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है SBI to raise 60,000 crore via bonds in FY27। मींस मेजर कैपिटल रेजिंग मूव है बाय इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, दैट इज बॉन्ड, ATI एंड टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट। इनमें जो इनके थ्रू इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है SBI रेज करने वाला है। तो हाईलाइट्स कैपिटल एडिक्वेसी प्लानिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, बैलेंस शीट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि टीयर 2 ये 81, मतलब ये टीयर 2 और ये 81 क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ना बेसिकली सिंपली इट इज लाइक अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स बाय बैंक। तो जब कोई बैंक रेज करता है ना फंड, तो वो उसके ना जो फंड्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक होता है CET1, एक होता है AT1 और एक होता है टीयर 2।
सीईटी वन एक कॉमन इक्विटी होता है जो हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल माना जाता है, कोर बैंक कैपिटल माना जाता है। एंड ये इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिस्क्लोज रिजर्व्स या फिर कोई रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर आती हैं। एंड इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक कैपिटल कहा गया है। देन 81 एक एडिशनल टीयर वन होता है जो कि एडिशनल गोइंग कंसर्न कैपिटल है बिलो सीईटी वन। सीईटी वन से नीचे लेवल पे आता है एंड इट इज अ परपेचुअल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल बॉन्ड एंड कंटेंजेंट कन्वर्टेबल्स इसके अंदर आते हैं। एंड दिस इज रिस्कियर, इससे सीईटी वन से ज्यादा रिस्कियर 81 होता है। टीयर टू होते हैं बेसिकली सप्लीमेंट्री कैपिटल एंड लोअर क्वालिटी के कैपिटल होते हैं। सबऑर्डिनेटेड डेट्स, सर्टेन लोन प्रोविजंस, मतलब जो कि क्या करते हैं हमारी लाइबिलिटी जो है उसको उसके लिए एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं कि अगर सपोज हमें आगे जाके लिक्विडिटी हमारी डाउन हो जाती है तो हम इन फंड्स का यूज करके अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं, जो लिक्विडिटी में लॉस आया है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन मिनिमम ओरिजिनल मैच्योरिटी इज यूजुअली 5 years और इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो जनरली 5 साल की होती है। ठीक है, तो इसका एक तरह से हायरार्की आप कह सकते हो फंड्स की। देन आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इज रिलेटेड टू ओके हाँ ओके आई लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। ये एक ना एक मतलब ये वैसे मैंने इसमें यहाँ जो टेबल मैंने बनाई है उसमें ये इंक्लूड नहीं किया है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो रेलिवेंट। दैट इज रिलेटेड, दिस इज बेसिकली ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड्स। ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड्स क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना उनकी भी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि मतलब, या फिर कह सकते हो आप कि उनको एक रैंकिंग दी जाती है बेसिकली। ठीक है, कि ये बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और ये हर साल ये दी जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको 24, 25 और 26 का डेटा दिया है ना। 26 के जो अवार्ड है वो सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनल ग्रोथ की वजह से मिला है। किसको मिला है? बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का अवार्ड दिया गया है डीबीएस बैंक को। इसमें ना 3 तरीके के अवार्ड्स होते हैं, एक होता है बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक, एक होता है बेस्ट कंज्यूमर बैंक और एक होता है बेस्ट डिजिटल बैंक, है ना। तो बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक डीबीएस बैंक को दिया गया है क्योंकि इसने इट हैज मेंटेन्ड डोमिनेंस इन द सेक्टर बाय प्रायोरिटाइजिंग ईएसजी अलाइंड फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल कॉर्पोरेट ग्रोथ। एंड बेस्ट कंज्यूमर बैंक कुछ रीजनल विनर्स है उनको दिया गया है, तो आपको इसलिए इतना फिर रेलेवेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, देन डिजिटल बैंक भी कुछ रीजनल विनर्स को दिया गया है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं मेरी हिस्ट्री क्या है। जो 2024 के अवार्ड्स थे वो बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का एचएसबीसी को दिया गया था, विच इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सटेंसिव ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंकिंग लीडरशिप एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। देन बेस्ट कंज्यूमर बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को दिया गया था, विच इज अवार्डेड फॉर एक्सेलेंस इन रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सुपीरियर कंज्यूमर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस। बेस्ट डिजिटल बैंक वाज गिवन टू award was given to Standard Chartered, that is cited for its rapid innovation in digital platforms and successful fintech integration. ऐसे ही 2025 में जो अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे सिटी बैंक को। सिटी बैंक बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक के लिए, डिस्टिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन कॉर्पोरेट लेंडिंग एंड डीप पेनिट्रेशन इन ग्लोबल मार्केट्स। And best consumer bank Santander, that is achieved retail banking excellence with significant impact across European and Latin America markets. Okay, then best digital bank DBS को मिला था, मींस 2025 में भी अवार्ड दिया गया मिला है और 2026 में भी अवार्ड मिला है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक को इन दोनों साल में अवार्ड मिला है। 2025 में जो अवार्ड मिला था वो मिला था बेस्ट डिजिटल बैंक की वजह से, और जो अब मिला है वो मिला है बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक की वजह से। ठीक है, तो ये डीबीएस बैंक का थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू एमसीक्यूज। सो एमसीक्यू है क्यू। In July 2026, RBI introduced a framework allowing banks to raise funds via tokenized digital bonds through GIFT City. What is the primary objective of this initiative? To reduce dependence on retail deposits, to promote blockchain adoption in capital markets, to curb inflationary pressures in the economy, and to strengthen India's forex revenue. तो किस लिए किया गया था? क्योंकि देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है डिजिटल बॉन्ड्स, है ना, यहाँ पे बॉन्ड्स लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ बॉन्ड्स लिखा हुआ है तो वो किससे मैच करेगा, है ना। बॉन्ड्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि ये कहाँ पे आना चाहिए, हमारा ब्लॉकचेन अडॉप्शन इन कैपिटल मार्केट्स की कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई रिटेल डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है, ना यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन की बात हुई है या फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन अडॉप्शन इन कैपिटल मार्केट्स। So to promote blockchain adoption in capital markets, it has it. तो इसका रीजनिंग क्या है? RBI move is aimed at modernizing debt markets by leveraging blockchain and tokenization, enhancing transparency and efficiency in bond issuance. Then next MCQ is recently several Indian banks partnered with OEMs to deploy AI based cyber security agents. अगर आपको याद हो तो मैंने ये करवाया है पिछली वीडियोस में अपनी, मैंने आपको न्यूज करवाई थी। तो OEMs क्या होते हैं? OEMs are original equipment manufacturer। मीन्स ये क्या करते हैं, ये ना ये इक्विपमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स को बनाते हैं और फिर ना कोई दूसरी पार्टी उस पर अपना लेबल डाल के आगे उसे सेल कर देती है। मतलब ओरिजिनली जो इक्विपमेंट्स है वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन आगे पार्टीज जो है वो आके कोई दूसरी थर्ड पार्टी आके इस पे अपना लेबल डाल के उसे आगे इशू कर देती है, तो वो ओईएम्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडियन बैंक्स हैं जिन्होंने सेवरल इंडियन बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टनर किया है। इंडियन बैंक्स ने क्या किया है? पार्टनर किया है विद ओईएम्स टू डिप्लॉय एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? साइबर सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनका मेन एडवांटेज क्या होगा इस इनिशिएटिव का?
इसका मेन एडवांटेज है एनहांस्ड रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स, क्योंकि तो नाम से पता चल रहा है साइबर अटैक्स ना, तो साइबर सिक्योरिटी क्यों की जाती है, ताकि हम साइबर अटैक से बचें। तो एनहांस्ड रेजिलियंस अगेंस्ट द साइबर अटैक्स। So with rising digital transactions, AI-driven defense systems helps banks proactively detect and neutralize cyber threats, which is safeguarding financial stability. Then next is economic indicators. Economic indicators में सबसे पहला है, ये नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जुलाई 28 दैट इज रिलेटेड टू फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स रोज टू USD 676.24 billion, which has increased by 1.39% as compared to June data. If we compare with June data, then it has rose by 1.39%. Okay. Then June 29 कोर सेक्टर आउटपुट मीन्स क्या होता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा आउटपुट जनरेशन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इस बार जो सेक्टर ने अपना डेवलपमेंट दिखाया है वो दिखाया है स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इट हैज ग्रू बाय 6.2% ईयर ऑन ईयर। ओके, इसमें जो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई दी है वो 6.2% की दिखाई दी गई है। ओके, किसके अंदर? स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं एंड स्टील्स एंड, तो इसकी वजह से इनका आउटपुट इनका जो है काफी राइज हुआ है। ओके, जून 30 फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है कि फिजिकल डेफिसिट हमारा जो है 25%, अभी तक 25% हमारा क्या हो चुका है क्वार्टर वन की बात हुई है, क्वार्टर वन। ठीक है, तो क्वार्टर वन में जो जून तक है, तो क्वार्टर वन जो है उसमें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 25% हम ऑलरेडी उसका बेसिकली कवर कर चुके हैं ऑफ फुल ईयर टारगेट। मतलब जो हमने पूरा फुल ईयर का टारगेट बनाया था उसका 25% ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट हमारा हो चुका है। मतलब अभी तक हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट का लेवल हमारा बहुत हाई चल रहा है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? फिजिकल डेफिसिट हमारा इतना हाई क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम केपेक्स स्पेंडिंग कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है नया। ओके, तो मतलब इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से केपेक्स स्पेंडिंग बहुत हाई होती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट वो होता है जब गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं गवर्नमेंट के डिपॉजिट से, तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हमारे गवर्नमेंट के डिपॉजिट से ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो उसको फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन कहा जाता है। देन जून 31 में है मैन्युफैक्चरिंग PMI। मैन्युफैक्चरिंग PMI के बारे में आपको पहले ही बताया था, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, कि मतलब कितने ऑर्डर्स जो है वो मिल रहे हैं, है ना, कितने ऑर्डर्स एक मैन्युफैक्चरर को मिल रहे हैं। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, आई थिंक सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, PMI के बारे में। तो ये अब जो है 56.8 हो गई है, विच हैज एक्सपेंशन इसमें दिखाई दिया है, ड्रिवन बाय न्यू ऑर्डर्स। इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो PMI इंडेक्स हमारा ग्रो कर रहा है। फिर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, थोड़ा सा ईज हुआ है। CPI हमारा 4.7% हुआ है। फूड इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि मानसून की वजह से हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, बट अब थोड़ा मॉडरेशन उसमें देखने को मिला है। ओके, टू MCQs. Okay, India improved its position from 82nd to which rank in the latest global reform rankings? इससे पहले, इसको आप आंसर करने से पहले ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल रिफॉर्म्स रैंकिंग्स क्या होती हैं, तभी हम इस वाले पोजीशन पे आ पाएंगे। पोजीशन बताएं, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग्स क्या होती हैं। इट इज बेसिकली एक्सेसिंग रिफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड। ओके, व्हाट इज इट? इट मेजर्स द इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स ऑफ कंट्रीज। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कंट्री, बिजनेस क्लाइमेट, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं या की कंसिडरेशंस हैं जो इसमें, जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट। ओके, इसमें रैंकिंग का स्केल क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी जो है टॉप 10 में आती है तो वेरी गुड कैटेगरी में होगा। अगर आपकी 11 to 30 के बीच में रैंक आती है तो गुड। अगर 31 से 70 के बीच में आती है तो मॉडरेट। वीक कैटेगरी वो होती है जिसमें 71 to 100, एंड पुअर अगर 100 से भी नीचे है तो पुअर। ठीक है, तो टॉप रिफॉर्मर्स इसमें कौन है? सिंगापुर, एस्टोनिया एंड यूएई, ये क्या है, टॉप रिफॉर्मर्स है। और चैलेंज क्या है? वेनेजुला, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड होती है, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज होते हैं, बेटर गवर्नेंस एंड सोशल इंक्लूजन। ठीक है ना, जिससे प्रोग्रेस कंट्री की बेसिकली कैसे हो रही है। तो हमारी जो इंडिया है, पहले जो इंडिया की रैंक थी वो थी 82nd रैंक। अब इंडिया की रैंक जो है वो और बढ़ गई है। इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? 57th रैंक। अब इंडिया 57th रैंक में आ गया। मतलब इंडिया में रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, ऐसा ये रैंकिंग इंडेक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले इंडिया वीक कैटेगरी में आता था, क्योंकि 82 क्या है, वीक कैटेगरी के अंदर। तो पहले इंडिया वीक कैटेगरी में आता था, लेकिन अब इंडिया ने एक शिफ्ट किया है टुवर्ड्स मॉडरेट कैटेगरी। तो इसका मतलब इंडिया के जो रिफॉर्म्स हैं वो काफी इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिला है। ओके, तो यही बस MCQ में भी था। ठीक है, तो आंसर इसका है 57th इसकी जो है रैंक हमारी हो चुकी है। सेकंड है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक 2019 का आया है, वो रिसेंटली रिलीज, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है ना, और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन क्या है? 76। इंडिया की क्या पोजीशन है? 76 है आउट ऑफ 115 कंट्रीज। एक ना 115 कंट्रीज में से इंडिया किस रैंक पे है? 76 रैंक पर इंडिया
इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इट हैज एक्सपेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, एम्बिशियस सोलर टारगेट्स. Then heavy reliance on coal for electricity, need for stronger regulatory frameworks, balancing rapid economic growth and environmental sustainability. ये these were the challenges जो अभी भी फेस किए जा रहे हैं. ठीक है. Okay, now let's come to next, that is corporate updates. Corporate updates में पहला update है related to रिलायंस इंडस्ट्रीज. जुलाई 27 में क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात हो रही है कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है उसमें नेट प्रॉफिट हैज रोज बाय 12% ईयर ऑन ईयर एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन रिटेल एंड टेलीकॉम. इसमें रिटेल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है इन रिलायंस इंडस्ट्रीज. एंड रिलायंस के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर कौन थे? श्री धीरूभाई अंबानी. चेयरमैन एंड एमडी कौन है? मुकेश अंबानी. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मेकर चैम्बर्स, नरीमन इन पॉइंट, इन सब पे इसके बेसिकली है ना. एंड इसका मोटो है ग्रोथ इज लाइफ. एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 18.2 लाख करोड़. अप्रोक्सीमेट, ये कोई एक्सैक्ट डेटा नहीं होता, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटली डेटा होता है. ओके, और यूएस डॉलर में ये इसका है. देन नेट प्रॉफिट जो इसका है वो 95,754 करोड़ है. ग्लोबल रैंकिंग, ये जो है ग्लोबल रैंकिंग क्या है इसकी? 88 पे आता है ऑन फॉर्चून ग्लोबल 500 के हिसाब से. एंड फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के हिसाब से ये 45 रैंक पे आता है. ओके. देन नेक्स्ट इज जुलाई 28, दैट इज इन्फोसिस सिक्योर एआई डील. इन्फोसिस ने एक एआई डील साइन करी है, ठीक है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक यूएस बैंक के साथ. यूएस बैंक के साथ इन्फोसिस ने एआई डील करी है जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर्स का कंसाइनमेंट, ये मतलब साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ताकि एआई को और एआई में एनहांसमेंट लेकर आया जा सके. तो हम ये देखते हैं कि इसका बेसिकली इसका क्या क्या इसका डेटा है. इन्फोसिस एआई डील इसमें कब अनाउंस हुई थी? जुलाई 23 2026 में अनाउंस हो गई थी. इसकी डील वैल्यू यूएसडी 3.6 बिलियन है, दैट इज 61% ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मतलब 61% नेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. देन एआई रेवेन्यू उसका क्या शेयर है? इसमें एआई का रेवेन्यू का शेयर 8.2% है ऑफ टोटल क्वार्टर वन रेवेन्यू. क्वार्टर वन के रेवेन्यू का 8.2%. देन ऑपरेटिंग मार्जिन इज 21.1% एंड एफआई गाइडेंस इज दैट रेवेन्यू इज हैज इंक्रीज्ड बाय 1.5% टू 3%. मतलब पहले जो है 1.5% की रेवेन्यू थी, अब वो रेवेन्यू का जो रेट है वो इंक्रीज होकर 3% हो गया है. मींस यू कैन से डबल. मार्जिन 20 से 22 हो गया है. इसकी प्लेटफॉर्म्स आर इन्फोसिस टोपस एआई एंड ऑटोमेशन एंड इन्फोसिस कोबाल्ट क्लाउड ecosystem. And then strategic focus इसका है कि it has enterprise wide AI adoption, automation and digital transformation. Major client win कौन है? Mercedes Benz Group AG, AI led hybrid cloud and data center operations. Okay, so this is about the data points. Okay, regarding Infosys AID. Then next is July 2026, that is related to Tata Motors EV launch. Tata Motor ने एक EV मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्व EV. कर्व EV. कर्व में E नहीं है, लास्ट में E नहीं है, V ही है. ओके, और EV. तो ये बुकिंग्स ओपन विद स्ट्रॉन्ग इनिशियल डिमांड. मतलब इसमें ये अभी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, मॉडल कार का. ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल्स. कार मॉडल जो नया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट टाटा कर्व ईवी सीरीज एक्स. ये एक न्यू प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है एंड इट हैज लॉन्च्ड ऑन, वैसे तो ये मई 2026 में ही लॉन्च हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये यूज में जो है इसका अब आएगी. ठीक है. नेक्स्ट है स्टार्टिंग प्राइस इसका 16.99 लाख है. इसकी रेंज 502 किलोमीटर की है. 55 किलोमीटर पर आवर बैटरी, 8.6 सेकेंड्स कि इसका जो है डेटा है 8.6 सेकंड्स का 0 to 100 के बीच में जो डेटा है. एंड लाइफ टाइम बैटरी वारंटी इसके अंदर है. देन पावर एंड परफॉर्मेंस क्या है इसकी कि इसमें 55 किलोमीटर पर आवर का एक बैटरी पैक है एंड 167 PS 215 Nm. मतलब इसमें एक तरह से ये इसकी मेजरिंग करेंसी है टॉर्क की. टॉर्क की मेजरिंग करेंसी होती है एनएम. क्या है देखो मैं इसमें डिटेल आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि टॉर्क इन कार का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स द इंजन प्रोड्यूसेस टू टर्न द व्हील्स. इट हैज हेल्प द कार मूविंग एक्सेलरेटिंग एंड पुल हेड्स लोड्स. ठीक है, तो मतलब जो कार होती है जब वो ट्विस्ट करती है मतलब टर्न करती है या फिर जब वो ब्रेक्स पे एक्सेलरेट करती है तो उसकी जो फोर्स है उस फोर्स को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट दैट इज टॉर्क. ठीक है, तो ये एक तरीके से फोर्स है जिसपे कार की मूवमेंट होता है व्हील्स के. तो जो इसका टॉर्क है दैट इज 215 Nm. एंड 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 8.6 सेकंड्स. 8.6 सेकंड्स में ये कितना ट्रैवल कर सकती है? मतलब मैक्सिमम लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक ट्रैवल कर सकती है विद इन दिस टाइम. ओके, तो ये इसका आपको पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है कि ना, ये कार के लिए ही यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट आता है फास्ट चार्जिंग. 100 to 80% इन 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में चार्जिंग इसकी जो है वो 10 से 80% तक की चार्जिंग इसकी होने के चांसेस है. ठीक है, इन 40 मिनट्स. एंड V2L एंड V2V कैपेबिलिटीज में है. V2L एंड V2V कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है? V2L बेसिकली होता है व्हीकल टू लोड. Means the car powers external electricity devices directly from its battery. Then it turns the EV into a mobile power source.
मतलब ईवी आपका ना एक तरीके से मोबाइल की तरह हो जाएगा, मोबाइल पावर सोर्स जनरेट हो जाएगा, के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो अब इसमें आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अपनी बैटरी से डायरेक्टली पावर दे सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चार्जिंग लैपटॉप। जैसे अगर आप लैपटॉप अगर आपको चार्ज करने हैं या रनिंग अप्लायंसेज हैं, क्या कोई भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी। कैंपिंग इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी बैकअप्स आप यहाँ पे ले सकते हो। V2V इज व्हीकल टू व्हीकल, दैट मीन्स वन ईवी ट्रांसफर्स पावर टू अदर ईवी। व्हीकल टू व्हीकल का क्या मतलब है, एक ईवी जो है वो पावर ट्रांसफर करेगी दूसरी ईवी को। इट लेट्स वन इलेक्ट्रिक कार हेल्प्स चार्ज अनदर, तो इमरजेंसी चार्जिंग व्हेन अनदर ईवी इज लो ऑन बैटरी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर देखे गए। देन नेक्स्ट है स्मार्ट फीचर भी है, जैसे कि मतलब 12.3 इंचेस की इसकी टच स्क्रीन इसमें होंगी, जो हमारी टच स्क्रीन लगी होती है ना, जो अब विजुअल होता है डेटा मिडल में कार में, तो वो इसमें आप लगा सकते हो। देन लेवल 2 एडीएस इसके अंदर है। लेवल 2 एडीएस का क्या मतलब होता है, दे आर लाइक एन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट, मतलब जैसे जब आप मूव कर रहे हो तो ऐसे केस में ना आपको ये असिस्ट करता रहेगा कि कब हमको स्टीयरिंग देनी है, कब एक्सेलरेशन देना है, कब ब्रेकिंग करनी है इन सम सिचुएशंस। बट ड्राइवर मस्ट स्टे अलर्ट एंड रेडी टू टेक ओवर। लेकिन ऐसा भी नहीं, आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे, आपको अपना भी माइंड यूज यहाँ पे करना है। ओके, देन नेक्स्ट है 360 डिग्री कैमरा इसमें होता है, मतलब आप इसमें विजिबिलिटी प्रॉपर इसमें रहेगी हर तरफ से। एंड देन इसमें पेनोरमिक सनरूफ इसमें होती है अवेलेबल, है ना, मतलब ओपन सनरूफ। ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी एंड वारंटी। इसमें जो है 6 एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स सिचुएशन सामने आ जाए तो सेफ्टी पर्पस के लिए एयर बॉक्स आप ओपन कर देते हो, जिससे आप बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हो। तो वो 6 एयर बॉक्स इसके अंदर है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए काफी अच्छा पॉइंट है। और ईएससी एंड लेवल 2 एडीएस, ईएससी का क्या मतलब होता है, ईएससी इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इट इज अ सेफ्टी सिस्टम दैट हेल्प्स प्रिवेंट स्किडिंग एंड लॉस ऑफ कंट्रोल बाय ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग इंडिविजुअल व्हील्स एंड रिड्यूसिंग द इंजन पावर व्हेन नीडेड। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ना डेटा को मैनिपुलेट करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका स्किडिंग होने के चांसेस जो होते हैं ना, कंट्रोल लूज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। एंड इसके राइवल्स कौन है, मारुति ई वितारा and Mahindra BE6 and VinFast VF6. नेक्स्ट इज जुलाई 30, 2026 अडानी पोर्ट एक्सपेंशन। अडानी पोर्ट जो है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिला है, दैट इज कमीशन्ड न्यू कंटेनर टर्मिनल एट विजिंगम पोर्ट एंड इट बूस्ट कैपेसिटी बाय 1.5 MNTUs, मतलब ये इसकी यूनिट है जिससे मेजर किया जाता है। मतलब इसमें आप कैपेसिटी ज्यादा है, अब कंटेनर आने की जो कैपेसिटी है वो वाइड हो जाएगी। अब आप ज्यादा कंटेनर्स को वहां पर आप जो है इन वहां पे जो है आप उसको पार्क कर सकोगे, वहां रख सकोगे उसको, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि ये विजिंगम जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है वो इस तरीके का कुछ दिखता है, थोड़ा ब्लर इमेज बट कुछ इसी टाइप का ही दिखता है। तो इसमें इसका कुछ डेटा पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दैट इज अडानी पोर्ट्स एक्सपेंशन विजिंगम टर्मिनल। ये ओपन हुआ था 2 मई 2025 में एंड इट इज ऑपरेटेड बाय विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा बेसिकली इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और साथ में अडानी विजिंगम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो हैं जो इनको मिलकर काम करती हैं। देन इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला, मतलब ये किसके अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ध्यान रखना है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ केरला गवर्नमेंट के अंदर आता है। एंड इसके हार्बर क्या क्या इसमें ऑल वेदर मल्टीपर्पज है, ग्रीन, डीप ड्राफ्ट, डीप वाटर, मेगा सपोर्ट इसमें मिलता है। इसका साइज 450.59 हेक्टेयर्स है। बर्ड्स इसमें 2 है 2024 के डेटा के हिसाब से। एम्प्लॉइज इसमें 2000 है 2024 के डेटा के हिसाब से। डेप्थ इसकी 24 मीटर्स 79 फीट। ओके, so the last news under this section, under this category is July 21, that is related to HDFC Bank merger update. So it has completed a final integration with HDFC Limited, unified operations across retail and corporate banking. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे retail and corporate banking के बीच में क्या हुआ है, एक तरीके से merger हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अपडेट है, HDFC बैंक मर्जर क्रिएटिंग इंडियाज फाइनेंशियल पावर हाउस। अब जो HDFC के बारे में अगर देखा जाए तो HDFC एक तरीके से 6th लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर किया जाए तो ये 6th लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड एंड नंबर 1 बैंक इन इंडिया इन एसेट एंड मार्केट वैल्यू। और अगर एसेट और मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो जो HDFC लिमिटेड है वो क्या है, नंबर 1 बैंक इन इंडिया। तो HDFC जो है वो क्या है, 6th लार्जेस्ट बैंक है। और HDFC ये और जो ये लिमिटेड है ये क्या है, तो ये इन दोनों की एक खासियत है, मतलब इन दोनों की इंपॉर्टेंस है। अब अगर ये दोनों मर्ज कर जाते हैं तो ये एक तरीके से सिनर्जी क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये दोनों जो मिल रहे हैं इससे ना एक सिनर्जी क्रिएट होगी। कितनी सिनर्जी क्रिएट होगी, देखो यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट्स है, इससे सिनर्जी क्रिएट होगी, इनसे इनका जो मॉर्गेज बिजनेस है वो भी एक्सपेंड होगा, साथ में डिजिटल एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स भी इनके एनहांस होंगे, ठीक है। और इसमें मर्जर इफेक्टिव कब से हुआ है, ये होगा जुलाई 1, 2023 से ये जो है इफेक्टिव हुआ है। एंड देन इट हैज मर्ज्ड HDFC into HDFC बैंक एंड इनके कंबाइंड एसेट्स जो है वो कितने हो गए हैं, 430 मिलियन। कंबाइंड एसेट्स 430 मिलियन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और कस्टमर बेस जो है इनका ओवर 120 मिलियन क्लाइंट्स इनके पास हैं। देन ब्रांच नेटवर्क 8000 प्लस ब्रांचेस इन 3800 सिटीज। लोन पोर्टफोलियो 23.1 लाख करोड़ रुपीस। एडवांस इन रिटेल एंड हाउसिंग लोन्स फोकस इसमें रहेगा।
एंड देन डिपॉजिट्स जो है वो कितने हैं 23.5 लाख करोड़ रुपीस इसके डिपॉजिट। तो ये इसका बेसिक डेटा है कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कितने दिन के इनके एसेट्स और नेट प्रॉफिट हो जाता है। देन कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है पहले तो समझो क्या। कैपिटल एडिक्वेसी बेसिकली इसको हम सीएआर कहते हैं शॉर्ट में। तो कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो है वो हमारा हो गया 18.9%। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है। तो ये क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बेसिकली ये बताता है कि आपके कितना पोटेंशियल है लॉसेस को एब्जॉर्ब करने का, कि आप अपने लॉसेस को कितने हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितने हद तक अपने लॉसेस को आप कवर कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, टीयर 1 जो हमने ऊपर टीयर 1 टीयर 2 के बारे में आपको बताया था। तो टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल को आप ऐड कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे रिस्क वेटेड एसेट से, ठीक। तो उससे आपका क्या आ जाएगा, सीआर आ जाएगा। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये कि आपका एक काफी अच्छा पोटेंशियल है अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने का। और हाँ, इसके सीईओ कौन है, सीईओ है शशिधर जगदीशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So now let's begin with our MCQs. Okay. RBI recently reported strong inflows of foreign currency non-resident deposits between June and July 2026. तो इन्फ्लोज कितने हुए हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लोज का डेटा है ये 36.725 बिलियन यहाँ पे जो है इन्फ्लोज, ठीक है। So this is the correct answer. And RBI's latest data highlights robust foreign currency inflows, strengthening India's forex reserves and stabilizing the rupee. Then in July 2026, PEVC investments, PEVC मतलब private equity and venture capital in India surged by nearly 85% to $3 billion. Which sector was primary driver? ये जो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पीई एंड वीसी में, तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये मेनली इसमें क्या मेन सेक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर जो सेक्टर इन्वॉल्व है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हमने भी पीछे भी बात किया, इंडिया का जो सेक्टर में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एरिया में देखी जा रही है, एनर्जी के एरिया में देखी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में देखी जा रही है और स्टील के एरिया में देखी जा रही है, स्टील प्लस एनर्जी। तो उससे हमें पता लगा लेना है कि ये इसका करेक्ट आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेगा डील्स इन रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, जैसे ब्रॉकफील्ड्स $600 million का प्लेटफॉर्म, टीपीजी, जीआईसी, आईसीआईसीआई एक्विजिशन ऑफ असीम इंफ्रा फाइनेंस, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो हो रहा है। फ्यूल्ड द सर्ज इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। देन नेक्स्ट है फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट डेवलपमेंट्स। फर्स्ट है, जैसे हमने पहले भी देखा कि यूपीआई हैज हिट all-time high in July 2026. It has processed 23.66 billion transactions worth 29.88 lakh crores up to 22.72 billion in June. मतलब जो जून में डेटा क्या था, जून में डेटा था 22.72 बिलियन का, वो इंक्रीज हो गया है जुलाई में, दैट इज 29.88 का 1 लाख करोड़ का इसका डेटा हो गया। तो बेसिकली इसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है और ये वैल्यू अब जो हुई है वो 19% से हुई है इन जुलाई, ठीक है। तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है इन यूपीआई ट्रांजेक्शंस। तो यूपीआई के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि, और हाँ एक चीज और है इसमें ना, यूपीआई की एक और यहाँ पे न्यूज है, इन दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स में ना एक ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स का ऑप्शन अब आएगा विद एनएफसी एट पीओएस एक्सपेक्टेड सून। मतलब ये अभी नहीं लॉन्च हुआ है, ये आगे जाके होगा, बट थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं इसका कि इसका मतलब क्या होता है कि ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स कैसे होगी। तो एनपीसीआई इज प्रिपेयरिंग टू सर्टिफाई पीओएस टर्मिनल्स फॉर ऑफलाइन यूपीआई वाया एनएफसी ट्रांजेक्शंस लाइकली कैप्ड एट 2000। अभी के लिए जो ट्रांजेक्शन है उन्हें 2000 तक रखा गया है ना। एंड एम्ड एट लो नेटवर्क एंड रिमोट एरियाज, मतलब इनका जो मेन फोकस है वो रिमोट एरियाज और लो नेटवर्क एरियाज पे है, जहां इतना अच्छा नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, उन एरियाज के लिए ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल। तो यूपीआई और ये दोनों न्यूज को हम एक साथ इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में थोड़ा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि यूपीआई इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन है, व्हिच इज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई इसको अपने अंडर रेगुलेट करता है। और इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक तरीके से है, व्हिच इज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था। इसमें 15.2 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ लगभग होती हैं एंड 22.1 लाख करोड़ वैल्यू पर मंथ इसकी है। इसका ग्लोबल रीच है, ये टोटल बेसिकली ये जो है ना, इसमें मतलब ये काफी सारी कंट्रीज में एक्टिव है और टोटल 10 कंट्रीज के अंदर ये अब तक एक्टिव है। और जो रिसेंट कंट्री है जो अभी अभी इसमें ज्वाइन हुई है वो ये कंबोडिया, ठीक है। तो इसलिए लाइव है इन सारे देशों में, यूएई, श्रीलंका, इन सब जगहों पे लाइव है, ठीक है। एंड 430 मिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ कर रहा है एंड नंबर 1 इन रियल टाइम पेमेंट्स, एसीआई रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 ये पे आता है, ठीक है ना। देन लेटेस्ट फीचर्स इसके क्या है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यूपीआई से अब आप क्रेडिट भी ले सकते हो, स्मॉल लोन्स को ले सकते हो इंस्टेंटली। एंड सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अगर आपको बाहर फॉरेन पेमेंट्स करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, सिंगापुर, यूएई, यूरोप, लेकिन उन्हीं कंट्रीज में आप कर सकते हो जो इसके साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। देन सेफ्टी एंड गवर्नेंस, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन चाहिए इसके अंदर, इसमें प्रॉपर सेफ्टी का मेजर का ध्यान रखा जाता है, इंस्टेंट है ना, सिक्योर ट्रांसफर होते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन एंड मीडी बेसिकली ऑपरेट इसको कौन करता है, एनपीसीआई के अंदर ही आता है, ओके। और ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था। तो इसमें 24/7 इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हो, आरबीआई का ओवरसाइट इस पर रहता है, 46% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स इसके थ्रू होती हैं।
देन अब जो है हम न्यूज पे आते हैं, तो हमारी एक ऑफलाइन यूपीआई पीओएस वाली न्यूज थी ना। पीओएस का मतलब क्या होता है? पीओएस इज बेसिकली, पीओएस की जो फुल फॉर्म है वो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन मेक पेमेंट, ओके, थ्रू दिस, तो मतलब कोई भी प्लेस जिसमें वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, जब पे सेल हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसे हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो यूपीआई का एक पॉइंट ऑफ सेल बनाया गया है जिस जो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब क्या है? इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आईएनएफसी, ये एनएफसी मतलब एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें कोई इंटरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एंड टैप एंड पे द एनसीएससी टेक्नोलॉजी, मतलब आप सिर्फ टैप करोगे और पेमेंट हो जाएगी आपकी, इसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉन्च एंड पर्पस क्या है इसके? इट इज लॉन्च बाय एनपीसीआई रूरल एंड सेमी अर्बन के लिए ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि वहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से यूपीआई पेमेंट्स अगर करने की कोशिश भी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं या तो पेमेंट अटक जाती है, वो फिर पैसे तो कट जाते हैं बैंक से, बट लेकिन वो पेमेंट होती नहीं है उस अथॉरिटी को या जो भी जिसपे भी ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट की जा रही है। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये वाला लॉन्च होना चाहिए, है ना। एंड ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स इसमें होंगी यूजिंग एनएफसी टैप एंड पे, ठीक है। तो इसमें लिमिट्स क्या होंगी? एनएफसी प्लस यूपीआई लाइट जो है वो 500 पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। पर ट्रांजेक्शन केवल आप 500 की कर पाओगे, और 2000 की इसमें डेली लिमिट है, डेली बेसिस पे 2000 तक की आप कर पाओगे, है ना। एंड देन सिक्योरिटी एंड पार्टनर्स, ये एक पिन के थ्रू इसको सिक्योर किया जाता है। ऑफलाइन पिन होता है और एनक्रिप्टेड टोकन्स होते हैं, उनके द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें कौन कौन वर्क कर रहा है? पार्टनर्स कौन है? पेन लैब्स, पे नियर बाय, फिनटेक पार्टनर्स के अंदर इन्वॉल्व है। और इसमें ये बूस्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैटरी पावर्ड, और ये ना बैटरी से चलता है। ये किससे चलेगा? बैटरी से चलेगा। एंड 20% राइज इन रूरल यूपीआई एडॉप्शन, क्योंकि क्या है, रूरल एरियाज में जनरली यूपीआई नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी, तो उनके लिए भी अब ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे विदाउट नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। देन फ्लिपकार्ट लॉन्चेस फ्लिपकार्ट पे लेटर इन इंडिया। फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूसेस पे लेटर, कि आप बाद में भी पे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मतलब पे, या तो पे विद इन 30 डेज, मतलब तीन इसमें ऑप्शंस आपके पास होंगे। या तो पे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो, या फिर तीन स्प्लिट में पेमेंट करोगे आप, ठीक है। और या फिर आप जो है पेमेंट करोगे ईएमआई के थ्रू। ये आपके पास तीन ऑप्शन जो है होंगे फॉर हाई वैल्यू कैटेगरीज, लॉन्च्ड इन एसोसिएशन विद पेयू फाइनेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट्सएप ब्रिंग्स मेटा बिजनेस एजेंट टू इंडिया। दिस व्हाट्सएप रोल्स आउट एन एआई पावर्ड मेटा बिजनेस एजेंट for Indian businesses to automate customer interactions, sales, operations. Also adds new business discovery features inside WhatsApp. ठीक है. Next है NPCI working on unified agent protocol for AI-led UPI payments. NPCI developing a protocol to allow trusted AI agents to initiate UPI payments with minimal human involvement. मतलब अब जो आपका AI एजेंट है ना, वो आपकी UPI पेमेंट्स भी कर दिया करेगा, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। पोजिशनिंग इंडिया फॉर एजेंट कॉमर्स। यूपीआई नाउ लाइव इन अप्रोक्सीमेटली 10 कंट्रीज। हमने पहले ही बात करी कि यूपीआई ऑपरेशनल हो गया है 10 कंट्रीज में, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, supporting cross-border remittances and tourism payments. Okay. Then question पे आते हैं। A fintech startup plans UPI based wealth tech product एक लाया गया है फॉर इंस्टेंट म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन। म्यूचुअल फंड के लिए बेसिकली एक यूपीआई बेस्ड वेल्थ टेक प्रोडक्ट लाया गया है विद थर्ड पार्टी पेमेंट फैसिलिटेशन। तो ये इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लाइव जाना है तो इसमें हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा? तो लाइव जाने के लिए आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर थर्ड पार्टी पेमेंट। अगर आपको थर्ड पार्टी पेमेंट करनी है तो आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि सेबी में 2026 का एक कंसल्टेशन पेपर आया है विच इज डायरेक्टली इनेबल्ड थर्ड पार्टी पेमेंट्स इन एमएफ व्हिच इज क्रिटिकल फॉर वेल्थ टेक प्रोडक्ट्स। आरबीआई फ्रिक्शन मेजर्स आर स्टिल अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस है ई0 एफआईआर सिस्टम। गवर्नमेंट ने एक ई0 एफआईआर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि आप जो है ना ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर दोगे। ऑनलाइन आप एफआईआर फाइल कर सकते हो ना। और किस टाइप के केसेस में ऑनलाइन फाइल करोगे आप? साइबर क्राइम के केसेस में। तो अगर कोई आपसे ईमेल फ्रॉड या कोई भी फिशिंग जैसी चीजें साइबर क्राइम से रिलेटेड होती हैं, तो आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन उसमें जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है ना, थ्रू ई0 एफआईआर सिस्टम। तो ये इसके बारे में डिटेल्स हम देखते हैं कि इसका क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ई0 एफआईआर सिस्टम आया है एम्पावरिंग साइबर जस्टिस। तो ऑनलाइन एफआईआर बेसिकली पता है, इसका पहले नीड समझो। तो क्या होता है ना, जब कोई हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। और ना लोग जो वो सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो फिर अगर हमने इसकी सपोज कंप्लेन कर दी तो ऐसे में हमारा जो है हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, हमारा सब मजाक बनाएंगे। तो ये सोच के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते नहीं। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि उन्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है अपने ये फाइल करने के लिए, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा साइबर फ्रॉड जो होते हैं उनको कर्ब किया जा सके, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इसका एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 1930। साइबर क्राइम पोर्टल पे करना होता है काम, और ई एफआईआर जनरेट इसमें हो जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, केस ट्रांसफर टू लोकल पुलिस। फिर बाद में जाके एक लोकल पुलिस में केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टेट्स में क्या होती है, जैसे मतलब ये कहाँ कहाँ आ गया है, हर स्टेट में नहीं आया अभी। पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, दिल्ली एंड गुजरात, इन स्टेट्स में ये इंप्लीमेंट हुआ है। एंड रैपिड फंड फ्रीजिंग इससे होगी, बेटर रिकवरी होगी एंड ट्रांसपेरेंसी होगी। इसके बेनिफिट्स क्या है? फाइल एफआईआर फ्रॉम होम, आप घर से ही एफआईआर फाइल कर सकते हो। रैपिड फंड फ्रीजिंग एंड बेटर रिकवरी रेट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अपडेट्स। तो इसका इम्पैक्ट 6000 प्लस एफआईआर फाइल में हुआ है। ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है। एंड इट हैज अ विजन फॉर साइबर सिक्योर इंडिया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से इंडिया जो है बच्चा, तो उसके लिए ये मेजर लेके आया गया। देन नेक्स्ट इज जीएसटी अपडेट्स।
जीएसटी अपडेट्स में पहला अपडेट यहाँ पर आ रहा है ईआरपी एंड एपीआई को लेकर कि ईआरपी और एपीआई को दोनों को हमको इंटीग्रेट करना है ना। ईआरपी सिस्टम जो होता है मतलब जो मतलब पूरा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का पूरा सिस्टम एक कंपनी के अंदर होता है, उसके साथ साथ हम उसमें एपीआई को भी लॉन्च कर देंगे। अब ये एपीआई क्या होता है और ये जो है ना ये बेसिकली फाइनल रिमाइंडर इसके लिए दिया गया है थ्रू जीएसटी, ठीक है ना, जुलाई 27। अब देखते हैं इसमें ना इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस एपीआई मींस। देखो एपीआई का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मींस ये क्या करता है, ये ना एक मीडिएटर का काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ मीडिएटर बिटवीन वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर। मतलब दो सॉफ्टवेयर को आपस में ये कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो एपीआई इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद अनदर। थिंक ऑफ इट एज अ ब्रिज दैट लेट्स डिफरेंट सिस्टम्स एक्सचेंज डेटा। मतलब अलग अलग सिस्टम्स अपने डेटा को ना एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू दिस एपीआई। तो इसमें क्या होता है, देखो इसकी वर्किंग समझना जरूरी है, ठीक है, तभी आप इसको इमेजिन कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। देखो सबसे पहले देखो, जब आप इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, जब आप अपने यूपीआई का ऐप ओपन करते हो, ठीक है, आपने ओपन किया तो पता है वो क्या करता है, आपको पता नहीं चलता है। आप तो यूपीआई का ऐप ओपन करते हो, पेमेंट करते हो, नोटिफिकेशन आपको मैसेज आ जाता है, बस खत्म बात है ना। लेकिन लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, जो जब आप यूपीआई का ऐप ओपन करते हो ना, तब उसके बाद ना वो एक रिक्वेस्ट दे देता है टू सर्वर। सर्वर को ना एक रिक्वेस्ट पहुंचाई जाती है, और वो किसके थ्रू पहुंचाई जाती है, एपीआई के थ्रू। तो एपीआई एक मीडिएटर का काम कर रहा है बिटवीन सर्वर एंड यूपीआई, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है एपीआई। तो वो सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट भेज देता है एपीआई। अब जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी गई तो अब वो उसको जो है प्रोसेसिंग करेगा उस रिक्वेस्ट को। तो जब प्रोसेसिंग हो जाएगी रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद वो क्या करेगा, और ये बहुत ही सेकंड्स में काम होते हैं, बहुत सेकंड्स में, मतलब पता भी नहीं चलेगा कब होगा। देन रिक्वेस्ट होगी सर्वर को, फिर उसके बाद जाके वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड देन अपना रिस्पॉन्स देगा। अब रिस्पॉन्स आपको विजिबल होता है, ठीक है, कैसे विजिबल होता है, बैलेंस के फॉर्म में। जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो उसके बाद ना आपको वो बैलेंस शो कर देता है कि ये आपका बैलेंस है। देन जो वेदर कंडीशंस है वो, या जो पेमेंट कंफर्मेशन है कि आपकी पेमेंट हैज बीन कंफर्म, इस तरीके से वो मैसेज आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो उसका, है ना। तो इसमें एपीआई एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एपीआई एक तरीके से यूपीआई और सर्वर के बीच में इंटीग्रेशन क्रिएट करता है। तो इसलिए कहा गया है कि एपीआई बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा है, तो इसलिए एपीआई को हमें ना अपने जब हम अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एंटरप्राइज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एपीआई का यूज करना चाहिए, ओके, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, सारा डेटा प्रॉपर तरीके से विजिबल रहे। जुलाई 28 में एक वैलिडेशन टेस्टिंग हुई है, दैट सैंडबॉक्स टेस्टिंग कंप्लीटेड फॉर न्यू एरर कोड्स ensuring shift to accuracy। एंड जुलाई 29 में है पोर्टल डाउन टाइम नोटिस। ये एक नोटिस आया था जो कि एक डाउन टाइम कि थोड़े समय तक आप जो है ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाओगे। इट एडवाइज्ड जो मतलब टैक्स पेयर्स हैं वो ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे बिटवीन 10 PM to 2 PM। 10 अगस्त 1 में एक रिवाइज्ड एपीआई आया है, न्यू स्कीमा इंप्लीमेंटेड, मैंडेटरी शिफ्ट टू मॉडल एंड शिफ्ट टू जीएसटी एंड यूआरपी हैंडलिंग्स एंड वॉलंटरी क्लोजर इनेबल्ड। तो ये कुछ नई स्कीम आई है जिसमें कि ये सारी फैसिलिटीज, इसके बारे में आपको पहले बताया था, शिफ्ट टू मॉडल जो है और वॉलंटरी क्लोजर ऑफ ई-वे बिल्स है ना, वो सब उसके रिलेटेड एक न्यू स्कीम यहाँ पे देखने को मिली। तो अब यहाँ पर ना एक मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा डेटा है ये, रिलेटेड टू जीएसटी कलेक्शन एंड ईयर ऑन ईयर ट्रेंड, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, इसको आप एनालाइज कैसे करोगे कि देखो हमारा जो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इसे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। इन दोनों में भी इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1% से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1% से इंक्रीज हो रहा है। फिर इधर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2% से, ठीक है। फिर इधर कितने, यहाँ पे अब डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है। कितने से माइनस में गया है, 1% से माइनस में गया है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो जो मतलब हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। देन उसके बाद उसमें फिर से एक इंक्रीज दिखाई दिया है बाय अराउंड 2.9% का, फिर से एक इंक्रीज दिखाई दिया है। देन उसके बाद इसमें फिर डाउनफॉल दोबारा से आ गया है ना, दैट इज 5.5% का और डाउनफॉल इसके अंदर आ गया है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ना इस तरीके से फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। और अगर हम रिसेंट जून और जुलाई के डेटा को सिर्फ नोटिस करें तो ऐसे केस में हमारी जीएसटी कलेक्शंस बढ़ी तो है, ध्यान से सुनना, जीएसटी कलेक्शंस हमारी बढ़ी तो है, लेकिन जो परसेंटेज बढ़ी है ना वो कम हो गई। मतलब जो पिछली बार हमारा जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज आया था, है ना, वो इस बार वो इंक्रीज कम बाय 5.5, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये सारी चीजें आपके डायग्राम में भी यहाँ पे है कि पीक जो है वो कितना है, जो मतलब सबसे ज्यादा जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अप्रैल में हुआ है। ये पीक मंथ था जिसमें सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, फिर वो डिक्रीज होता गया उसके बाद से, ओके। फिर मतलब जुलाई में थोड़ी सी हाँ रिकवरी जरूर हुई है ना, थोड़ा सा मतलब इंक्रीज आ रहा है, रिकवरी आ रही है, पर बहुत ज्यादा रिकवरी अभी भी नहीं आई है। देन इनकम टैक्स अपडेट्स में ऐसा है कि जुलाई 27 2026 में सर्कुलर आया है सीबीडीटी के द्वारा। इसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप कोई फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में लेकर आते हो, मतलब फॉरेन का जो पैसा है वो इंडिया में ट्रांसफर करते हो, इंडिया में लेकर आते हो उसको, तो ऐसे केस में आपको जो आपने टीसीएस फॉरेन पेमेंट्स पे पे किया होगा ना, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, जो किस सेक्शन के अंदर आता है, 206 सीआईजी के अंदर आता है, विच इज सिंप्लीफाइड रिकंसाइलेशन फॉर ट्रैवल एंड एजुकेशन पेमेंट्स। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना जरूरी है, ठीक है।
पहले आप ये समझो कि आपको ना पहले इससे पहले 206C जो है ना सेक्शन, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली बात करता है टीसीएस ऑन फॉरेन ट्रांजैक्शंस। अगर आप जैसे सपोज अगर आप सपोज लेट्स से जापान या लंदन कहीं भी आप घूमने गए, ठीक है? वहाँ पे ना आप खर्चा तो करोगे, ठीक है? तो जब आप वहाँ फॉरेन पेमेंट्स करोगे तो उसके साथ-साथ आपको टीसीएस की पेमेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है? टीसीएस की पेमेंट भी करनी पड़ती है। पर ये हर ट्रांज़ैक्शन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, ये कुछ स्पेसिफाइड फॉरेन पेमेंट्स होती है, उन पे ही एप्लीकेबल होता है। और ये किस में क्या होगा? एलआरएस, जैसे आप अगर कोई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कोई रेमिटेंसेस दे रहे हो, है ना? या फिर कोई ओवरसीज टूर पैकेज है ना? कोई बाहर का कोई टूर पैकेज है जो जिसके लिए आपने पेमेंट करी। एंड कौन इसे कलेक्ट करता है? इसे कलेक्ट करता है ऑथराइज्ड डीलर। मतलब अगर सपोज आप एलआरएस रेमिटेंस में एंटर कर रहे हो तो ऐसे केस में आपसे टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? ऑथराइज्ड डीलर कलेक्ट करेगा, ठीक है? और अगर आप कोई ओवरसीज टूर पैकेज पे हो तो ऐसे केस में जो टूर ऑपरेटर होगा वो आपसे क्या करेगा? आपका टीसीएस कलेक्ट आपसे कर लेगा। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी वो 7 लाख टू 10 लाख तक की इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। एंड 2000 डेली लिमिट इसके अंदर है एज पर लेटेस्ट रूल्स की अगर बात करें तो। और इसमें जो टीसीएस रेट है वो कितने का है? 5% का। टीसीएस रेट कितने का है? 5% का है। और अगर सपोज अगर आपने विदाउट पेन ये काम किया, अगर आपने पेन नहीं दिया, आधार नहीं कोड किया, तो ऐसे केस में और ज्यादा हाई रेट्स भी लग सकते हैं। और कब कलेक्ट किया जाएगा इसको? इसको कलेक्ट किया जाएगा एट डेबिट और पेमेंट टाइम, ठीक है ना? विच एवर इज अर्लियर एंड बजट एंड, ठीक है ना? उसके अंदर काम है। ओके, सी दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 206C, ठीक है? कि किस ये टीसीएस पे एप्लीकेबल बेसिकली होता है, जो आप टीसीएस पे करते हो फॉरेन ट्रांजेक्शन पे, और वो भी सिर्फ इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ओवरसीज टूर पैकेजेस और एलआरएस रेमिटेंसेस, ठीक है? तो जो आप ये एलआरएस रेमिटेंस देते हो ना, अगर वो आप इंडिया में ट्रांसफर कर देते हो तो उस पे आपको ना टीसीएस का रिफंड मिल जाता है। अगर आप उसे इंडिया में ट्रांसफर कर देते हो तो आपको टीसीएस का क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। तो देखो, रिफंड का क्लैरिफिकेशन कहता है कि टीडीएस रिफंड अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस पे आपको मिल जाएगा, और वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टीडीएस और या फिर एडवांस टैक्स से, ठीक है? तो टीडीएस से या फिर एडवांस टैक्स से आप क्या कर सकते हो? माइनस कर दोगे अपना जो भी आपको टीसीएस का रिफंड मिला है जब आप अपना रिटर्न फाइलिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर, तो एक्सेस टीसीएस जो कलेक्ट हुआ होगा क्लेम्ड एज रिफंड इन आईटीआर, आईटीआर में उसको एक रिफंड की तरीके से माना जाएगा, सिमिलर टू द टीडीएस, जैसे टीडीएस में होता है। बैंक्स मस्ट रिपोर्ट टीडीएस रिफंड एडजस्टमेंट, और जो भी आपने ये टीडीएस रिफंड के एडजस्टमेंट किए हैं वो आपको रिपोर्ट भी करने पड़ेंगे। किसके अंदर रिपोर्ट करोगे? 27 EQ के अंदर आप रिपोर्ट करोगे, एंड फॉर्म 26 AS के अंदर भी आपको इसको रिपोर्ट करना होता है, रिकंसिलिएशन, ठीक है? फॉर रिकंसिलिएशन, ताकि रिकंसिलिएशन प्रॉपर हो सके। इसका पर्पस क्या है कि सिंप्लीफाइज रिफंड प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन पेमेंट्स करते हैं ना, उनके लिए जो रिफंड का प्रोसीजर होता है वो बहुत ही इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे जो है न्यूज देखी। देन फॉर्म वेट फॉर्म 10B एंड 10BB, इन दो फॉर्म की ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है जो चैरिटेबल ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, फ्रॉम टू सितंबर 30, 2026। मतलब इसकी जो ड्यू डेट है, ठीक है, फॉर 26 27 ईयर के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है, September 30, 2026 कर दी गई है। तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो 10B और 10BB होते हैं इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बाकी की ये न्यूज कवर कर लेते हैं, ठीक है ना? और ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि वो एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है? और बस थोड़े एमसीक्यूज हैं। देन जुलाई 29 2026 में सीबीटी का एडवाइजरी, मतलब सीबीटी एडवाइजरी आई है, दैट इज डायरेक्टेड फील्ड ऑफिसर्स टू इंश्योर टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न्स फाइल्ड। मतलब जो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं, मैंने आपको अपडेटेड रिटर्न के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वहां से चेक कर सकते हैं। डायरेक्टेड फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा आया है। जुलाई 30 में इनकम टैक्स पोर्टल में एक अपडेट आया है विच इनेबल्ड न्यू फाइल्ड कैपिटल गेन्स डेटा फ्रॉम डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो भी जब आप आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करोगे ना, तो आपका कैपिटल गेन्स का जो डेटा है ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल होगा, ठीक है? जो कि कहां से कलेक्ट किया गया होगा? डिपॉजिटरीज से कलेक्ट किया गया होगा, म्यूचुअल फंड से कलेक्ट किया गया होगा, इन दो केसेस, ठीक है? देन अगस्त 1 में एक सीबीटी नोटिफिकेशन आया व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड एआई बेस्ड स्क्रूटनी सिलेक्शन रिटर्न्स एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एंड मिसमैच एनालिटिक्स, ठीक है? तो एआई का यूज इसमें रिटर्न के जो सब असेसमेंट होता है उसमें किया जाएगा। देन आपका यहाँ पे एक डेटा है, जैसे मैंने जीएसटी का कलेक्शन बताया उसी तरीके से जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है ये उसका डेटा है, जिसमें पीक यहाँ पे भी पीक अप्रैल ही रहा, ठीक है ना? क्योंकि अप्रैल से बहुत इंप्लीमेंट हुए हैं ना बहुत सारे न्यू रिफॉर्म्स, तो इस वजह से यहाँ पे पीक रहा है, उसके बाद फ्लक्चुएशन देखने को मिला, ठीक है? तो अभी अगर हम जून जुलाई की बात करें तो ऐसे केस में एक रिकवरी फेज ही चल रहा है, ठीक है? तो इनकम टैक्स को आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 135 का जो है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इन करोड़ है, ठीक है? 1000 करोड़, 135,000 करोड़ का पीक अप्रैल में देखने को मिला है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब डिक्रीज हुआ है। लेकिन हाँ, अब जून के डेटा के हिसाब से जुलाई में डेटा थोड़ा सा बढ़ा है, तो मतलब ये रिकवरी फेज पे हम, ओके? अब मैं आपको बताती हूँ 10B एंड 10BB के बारे में। तो 10 10B एंड 10BB, तो जो 10B है और 10BB है इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, क्या है?
इट इज एप्लीकेबल, जो 10B है ना वो एप्लीकेबल है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड है अंडर 12AB। 12AB का मतलब क्या है, जो ये इनमें वो लोग आते हैं जो एनजीओज होते हैं या जो सोसाइटी होती है जो कि चैरिटेबल पर्पज के लिए काम करती है, तो उसके थ्रू रजिस्टर्ड है। तो 10B में वो लोग आते हैं, है ना। और 10BB में कौन आता है, 10BB में आते हैं इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C। इसका मतलब कौन है, ऐसी इंस्टीट्यूशन 1033C में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये 3 इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो होते हैं वो इसके अंदर 10BB के अंदर ना फॉर्म में फाइलिंग करते हैं इसमें। और 10BB का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है ऑडिट रिपोर्ट फॉर इनकम क्लेम्ड एग्जेम्प्ट, मतलब जो भी आपने इनकम अपनी एग्जेम्प्ट क्लेम करी हुई है उसके लिए ना आपको ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी होती है, ठीक है। और 10BB में क्या होता है, इसमें भी ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है फॉर द एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 1023C, है ना। अब ये देखते हैं कि हम ये 1023C तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि सेक्शन 11 और 12 में क्या है ना, सेक्शन 11 और 12 में कौन आता है और किस किस के लिए इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो देखो सेक्शन 11 कहता है कि अगर आपकी कोई इनकम अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने जो है चैरिटेबल पर्पज के लिए रखा हुआ है अपने पास, और उससे आपकी कोई इनकम जनरेट होती है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आपको उस इनकम का 85% हिस्सा चैरिटेबल पर्पज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी का पोर्शन जो है वो आगे आप डेफर कर सकते हो, मतलब उसको आप आगे के टाइम में मतलब उसको आप जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बट कम से कम अभी प्रेजेंटली आपको कम से कम 85% ऑफ इनकम आपको जो है चैरिटेबल पर्पज में लगानी पड़ेगी, तभी आप एक्सेम्पशन क्लेम कर पाओगे फ्रॉम टैक्स। तो ऐसा सेक्शन 11 कहता है। फिर ऐसी सेक्शन 12 आता है, सेक्शन 12 बात करता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की, मतलब अगर सपोज किसी भी इस टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनको अगर कोई वॉलंटरी डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो वो इनकम ही मानी जाती है, लेकिन अगर वो एक कॉर्पस डोनेशन है तो ऐसे केस में वो एक्सेप्ट है, ठीक है। ये अगर कोई अदर डोनेशन है, मतलब अगर अदर देन कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर कोई अदर डोनेशन है तो ऐसे केस में वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होनी चाहिए तभी वो एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। मतलब कॉर्पस डोनेशन तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा हर केस में, लेकिन अगर अदर देन कॉर्पोरेट डोनेशन है तो चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा तभी वो एग्जेम्प्ट होगा। तो थोड़ा सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इससे मैंने बता दिया। ऑडिट रिक्वायरमेंट कब होगी, मतलब इनको ऑडिट कब करवाना पड़ेगा, इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, सेम इसमें भी वही चीज है और मैंडेटरी है इनके लिए, ओके। नेक्स्ट है फाइलिंग मोड, ये इनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है, इसमें भी वही चीज है। देन ड्यू डेट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट क्या होती है, 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, जब भी वो कंपनी आईटीआर फाइल करेगी, इंस्टीट्यूशन आईटीआर फाइल करेगा उसके 1 महीने पहले उसको जो है 10B और 10BB का फॉर्म जमा करना पड़ेगा। इसमें भी सेम वही चीज होती है। इसमें क्या क्या फाइल करोगे 10B में आप, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, डोनेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और इसमें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स एंड कॉर्पोरेट फंड्स, कंप्लायंस विद अप्रूवल कंडीशंस, और इट शुड बी वेरीफाइड बाय सीए इन बोथ केसेस। तो ये हमारा इसका पूरा डिटेल है ना। अब केवल हमारा एक टॉपिक रह गया है, दैट इज एमसीक्यूज ओनली, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी, जीएसटी किस कंट्री में सबसे पहली बार आया था, एंड दैट इज फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस में सबसे पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। देन ऑल डिसीजंस ऑफ जीएसटी काउंसिल मस्ट हैव मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द, मतलब जितने भी डिसीजंस जीएसटी काउंसिल के होते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज की मेजॉरिटी होनी चाहिए, कितने रेशो में होनी चाहिए। तो हाफ होगी तो 3/4 होगी, 60% होगी, 90% होगी। तो द आंसर इज कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर कोई भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले रही है तो, ठीक है। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। So this ends up our session. We'll meet on next Sunday or on Monday. Okay. Thank you so much for watching this video.